ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ 2021 کے اختتام و 2022 کے آغاز کے موقع پر سال گزشتہ کے اہم واقعات پر روشن ٹی وی کی خصوصی پیشکش۔ مسلم نوجوان سال نو کے جشن سے پرہیز کریں اور اچھے کاموں میں اپنا وقت گزاریں۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی جمعیت علماء کی جانب سے شہر کے مختلف مساجد میں خطابات و بذریعہ پوسٹر کی گئی عوام سے اپیل۔ کسانوں کی ضرورت کے مطابق مسجد گودام کو تعمیر کیا جائے گا۔ ضلع کے میلارام دیہات میں 9.33 کروڑ مالیت سے تعمیر کردہ گودام کا ریاستی وزیر گنگلا کملاکر اور ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے کیا افتتاح۔ گزشتہ روز ڈسپلی منڈل بردی پور میں شہر کے علاقے نگرام سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے قتل کے معاملے کو ضلع پولیس کمشنر کیان ناگراجو نے کیا اندرون 24 گھنٹے حل۔ نئے سال کی خوشیاں عوام محفوظ انداز میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ منائے۔ نئے سال کے موقع پر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی، ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی، ایم ایل سی کے کویتا و دیگر نے دی مبارکباد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 2021 کے اختتام و 2022 کے آغاز کے موقع پر سال گزشتہ میں گزرے چند اہم واقعات پر ایک نظر۔ سال 2021 کا کیلنڈر آج رات 12 بجے کے بعد تبدیل ہونے والا ہے، جہاں پر سال 2021 کافی اہم واقعات کا گواہ رہا ہے۔ یوں تو کورونا کی وبا کے آغاز کے بعد زندگی ہر وقت ڈر و خوف میں رہی، لیکن ویکسین کی ایجاد کے بعد بھی خدشات ختم نہیں ہوئے، نہ ہی خطرے میں کمی آئی، جہاں پر 2020 میں کورونا وبا کے سبب لاک ڈاؤن کے اثر کو آج تک بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سال 2021 کے آغاز کی پہلی رات شہر کے علاقے نگرام میں ایک نوجوان کی خودکشی کے سبب سارے شہر میں غم کی و حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس ماہ یعنی جنوری 27 میں شہر کے علاقے وادی حسن میں سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے 3 ماہ کی دلہن کی قتل کی واردات پیش آئی، جس پر روشن ٹی وی کی جانب سے محکمہ پولیس کی کارکردگی پر کئی سوال اٹھائے گئے، جس کے بعد محکمہ پولیس میں کئی رد و بدل بھی آئے۔ ماہ مارچ میں شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے میں عوام کی تجارتی ترقی کے لیے رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کی ذاتی دلچسپی سے شہر کے علاقے احمدی بازار بکرا مارکیٹ کا انہدام کرتے ہوئے کمرشل کمپلیکس کی بنیاد کے لیے کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا، اور اسی ماہ میں ایک اور خوفناک قتل کی واردات پیش آئی، جہاں پر ایک شوہر نے معصوم بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، جس پر محکمہ پولیس کی جانب سے پھرتی دکھاتے ہوئے کارروائی انجام دی۔ ماہ اپریل کے آغاز پر ہی ہر دل عزیز رکن اسمبلی شکیل عامر کے والد محترم الحاج محمد عظیم صاحب کا مختصر سی علالت کے بعد انتقال ہو گیا، جس کی خبر ریاست میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور کورونا وبا سے بے خوف ہو کر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے ماہ رمضان میں دعاؤں کے ساتھ انہیں وداع کیا۔ ماہ مئی میں لاک ڈاؤن کی سختیوں کے بعد عوام کو راحت کے سلسلے کا آغاز ہوا، جہاں پر ایک با ایک بازار کے اوقات میں توسیع کی گئی۔ لاک ڈاؤن کے دوران ایم ایل اے نظام آباد بودھن کی جانب سے مفت تقریباً 2 ماہ تک مفت غذا کی تقسیم گھر گھر کی گئی۔ عید الاضحیٰ کی نماز بجماعت عیدگاہوں میں ادا کی گئی، وہ بھی تقریباً 1.5 سال بعد، جو مسلمانوں کے لیے کافی خوشی کا موقع رہا۔ موسم بارش کے آغاز کے بعد ہر بار کی طرح شہر کے اقلیتی علاقے کے کئی گھر و سڑکیں سیلاب کی طرح لبریز ہو گئی تھی، جس کے بعد ذمہ دار عہدیداروں و عوامی نمائندوں نے مسائل کے حل و عوامی مدد کے کام انجام دیے گئے۔ ماہ سپٹمبر میں گزشتہ 2 سال بحیثیت بلدی کمشنر سے خدمات انجام دینے والے IAS جتیشوری پاٹل کا بحیثیت
जिले कलेक्टर कामारेड्डी तबादला अमल में लाया गया। इसी तरह बोधन कोर्ट में 6 लाख मालियत का गुटखा बोधन स्पेशल जिम की जेर निगरानी जाय किया गया। माह अक्टूबर में शहर के एक शॉपिंग मॉल से अगवा होने वाली मासूम बच्ची को महकमे पुलिस ने अंदरून 3 ta 4 दिन में वापस अपने वालिदैन से मिलवाया। इसी माह की 31 तारीख को शहर के इलाके बोधन रोड पर फिर एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक मासूम तालिब इल्म ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद अवाम की जानिब से काफी वक्त तक एहतजाज किया गया। माह नवंबर में साबिका शरिया वक्फ बोर्ड सदर मौलाना वसीम रजवी के खिलाफ अहले सुन्नतुल जमात के ऐलान पर शहर के हर पुलिस स्टेशन पर अवाम ने बड़ी तादाद में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। माह दिसंबर भी काफी अहमियत का हामिल रहा, जहां पर जिला इंतजामिया में काफी तब्दीली आई। साबिका जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय जो 6 साल से जिले में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे थे, इनका तबादला हैदराबाद किया गया और बहैसियत जिले निजामाबाद कमिश्नर KR नागराजू ने इसी माह अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इसी तरह साल 2021 काफी अहम वाकयात का गवाह बना। नौजवान साल 9 को महफूज तौर पर मनाए, खुद भी महफूज रहे और अपने अफराद खानदान को भी महफूज रखे। पुलिस कमिश्नर KR नागराजू इन्होंने अवाम को दी साल 9 की मुबारकबाद। मेरे माइनॉरिटी भाइयों को भी नया साल का मुबारक देते हुए सब लोगों के घर में खुशी और उससे आप नया साल बनाना बोल के मेरे तरफ से और मेरे पूरा पुलिस ऑफिसर के तरफ से आप लोगों को मैं वो कर रहा हूँ। कोई भी अननेसेसरी जाके किसी गलत काम में नहीं वो ना बोलकर मैं सबके कमिश्नरेट के तरफ से चाहते हुए आप सबको नया साल मुबारक देते हुए कमिश्नर CP निजाम। शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 10, 11, 12, 13 में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर मुरम व पहाड़ों की खुदाई के खिलाफ कायद कांग्रेस सैयद खैसर ने की महकमे माइन जोलॉजी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से मुलाकात व सख्त से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। आज जिले कांग्रेस हरकियाती खास सैयद खैसर ने जिले महकमे माइंस एंड जोलॉजी असिस्टेंट डायरेक्टर B सत्यनारायण व सुपरवाइजर गोवर्धन से मुलाकात करते हुए शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 10, 11, 12, 13 में हो रहे गैर कानूनी तौर पर मुरम की खुदाई व ब्लास्टिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि चंद दिन कबल महकमे रिवेन्यू की जानिब से डिवीजन नंबर 13 में मुकामी कॉर्पोरेटर हारून के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर अराजी पर कब्जे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन महकमे माइनिंग व जोलॉजी की जानिब से कार्रवाई न करने पर महकमे की कारकर्दगी पर सवाल उठाया और कहा कि इन डिविजन्स में बड़े पैमाने पर इस तरह कानून को तोड़ते हुए और कुदरती वसाइल को लूटा जा है, जिस पर इनके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने व मुकदमा दर्ज करने का इन्होंने मुतालबा किया, जिस पर महकमे के जिम्मेदारों ने इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस इलाके का दौरा करते हुए तमाम मामले की जाँच की जाएगी। मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद सदर शेख जफर की जिले पुलिस कमिश्नर KR नागराजू से मुलाकात, इनका किया जिले में खैर मकदम। आज शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ तंजीम मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी जो कई सालों से अवामी मसाइल के हल के लिए शहर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और आज इस तंजीम के सदर शेख जफर ने जिले पुलिस कमिश्नर KR नागराजू से मुलाकात करते हुए इनका जिले में खैर मकदम किया और इनकी आमद पर खुशी का इजहार करते हुए शहर के मौजूद हालात व मसाइल व मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। साल 9 के मौके पर असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, MLC के कविता, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दी मुबारकबाद। साल 9 के मौके पर असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता, रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर, PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता जिले में मुकीम अवाम को साल 9 के मौके पर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए तमाम अवाम हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कोविड-19 उसूल और ज़ाबित पर अमलावरी करते हुए साल 9 की तकरीब को मनाने का इजहार किया। निजामाबाद मियां नीतू किरण डिवीजन नंबर 47 का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने डिवीजन नंबर 47 का दौरा करते हुए 10 लाख रुपए की मालियती रकम से CC रोड व CC कलवट की तामीर मुतालिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। वो बातजा मियां नीतू किरण ने दीगर मुकामात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुतालिका मसाइल से वाकिफियत हासिल करके फौरी तौर पर हल करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर M अरुण, नूरा डायरेक्टर K बालाजी, म्यूनिसिपल इंजीनियर इनायत करीम, सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। అలాగే నగర ప్రజలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, మనకు ఇప్పుడు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో భాగంగా మన నిజామాబాద్ నగరాన్ని
పరిశుభ్రమైనటువంటి నగరంగా మార్చుకోవాలని చెప్పేసి మన పురపాలక సంఘం కమిషనర్ గారు, ఎస్ఐలు, ఏఈలు, అలాగే మేమందరం కూడా కష్టపడి తగినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము. మరి ప్రజలందరూ కూడా మాకు సహకరించి మరి ఏదైతే యూజీడీ కనెక్షన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి మేము టైం పొడిగిస్తూనే ఉన్నాం. అయినా కూడా साल 9 तकारीब को पुरअमन तौर पर मनाने की रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अवाम उन्नास से की अपील। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने साल 9 की तकारीब को पुरअमन तौर पर मनाने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि नए साल के मौके पर हालत नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर अपने सुनहरे मुस्तकबिल को ज़ाया न करे और तमाम अवाम उन्नास कोविड तहदीदात पर अमलावरी करते हुए साल 9 तकारीब को खुशी के साथ मनाने की अपील की। मुस्लिम नौजवानों से आज रात एहतियात बरतने, नया साल ना मनाने की अपील। अलहाज हाफिज पीर शब्बीर साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा की अहमद पर हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी रियासती जमीयत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद के तहत आज जुम्मा के मौके पर शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में आइमा कराम ने मुसलमानों को खिताब करते हुए नया साल ना मनाने और जश्न व दीगर तकरीबात मुनक्किद ना करने की अपील की और कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में जहाँ और बहुत सारे बुराइयां जन्म ले रही हैं, वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी रात में नए साल का जश्न मनाने का एक आम रिवाज बनता जा रहा है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शागिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी ने शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में मोहल्ले के ही नौजवानों के हमरा मुहिम चलाई कि इस गैर इस्लामी व गैर शरई अमल को रोका जाए और मुसलमानों में ये शऊर पैदा किया जाए कि मुसलमानों को नया साल माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। ये ईसवी साल मनाना यहूदियों से मुशाहिबत वाला अमल है, इससे बचना चाहिए। मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ने सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों को इस नाज़िबा हरकत से दूर रखें। मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी इमाम व खतीब मस्जिद आबिदा, मुफ्ती शेख महमूद क़ासमी इमाम व खतीब अंदरून किला, मौलाना मुख्तार अहमद मुजाहिरी इमाम व खतीब मदीना मस्जिद, मौलाना इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी इमाम व खतीब मोती मस्जिद और शहर के अक्सर मसाजिद के आइमा कराम ने उम्मत मुसलिमा के नौजवानों को पैगाम दिया कि खुदारा अपनी इन गैर इस्लामी हरकतों से बाज आ जाए, चूँकि ये सब हरकत अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली है। नए साल की मुबारकबाद देना या केक खाना खिलाना, जश्न मनाना, तकरीबात मुनक्किद करना, डांस पार्टी करना, फार्म हाउस या गेस्ट हाउस और मोहल्लों और चौराहों पर शोर करना, एक गाड़ी पर 3-3 अफराद सवारी करना, ट्रैफिक कानून को तोड़ना, ये चीजें मुसलमानों को जेब नहीं देती है, इस इज्तिनाब करें। इस मौके पर मस्जिद इस्लामिया कमेटी व मुसल्लियान मस्जिद ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। मदीना मस्जिद कमेटी व मुसल्लियान, इसी तरह मोती मस्जिद कमेटी व मुसल्लियान और मस्जिद आबिदा, मस्जिद अंदरून किले के आइमा व मुसल्लियान ने भी इन चीजों के बाइकाट पर जोर देते हुए तमाम मुसलमानों बतौर खास नौजवानों से एहतियात बरतने की तरगीब दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मस्जिद इस्लामिया के तमाम ही मुसल्लियों की जानिब से हम अपने शहर के मुसलमान नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे समाजी और माशरती जितनी बुराइयाँ और ख़राबियाँ हैं उन सब से हमें बचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आज की रात में जो न्यू ईयर के लिए हमारे नौजवान बच्चे मुंतज़िर रहते हैं, इस तकरीब को मनाने के लिए इन चीज़ों से गुरेज करें, इज्तिनाब करें, परहेज़ करें। इसी तरह पुलिस का भी ताउन करें, रोडों पर सड़कों पर बाहर न निकलें और ट्रिपल राइडिंग या बग़ैर हेलमेट के या इसी तरह कोई क़ानून शिकनी का काम हम मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता है। और हमारा नया साल जो होता है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, ये नया साल हमारा नहीं है। इसलिए इसको मनाने से, मुबारकबाद देने से, जश्न और तकरीबात मुनक़िद करने से हत्तल इम्कान बचना चाहिए और इसका इस्लाम में कोई जवाज़ नहीं है। नया साल मनाना मुसलमानों ने कौम के लिए जायज़ नहीं है, उससे परहेज़ एहतराज़ करना ज़रूरी है और सड़कों पे भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहूदी और नसरानियों की जो है वो में बहुत ही मुशाबहत होती है, उससे परहेज़ करना ज़रूरी है। और दूसरी बात अहम बात बोलना ये है कि सड़कों पे चीख पुकार के साथ गाड़ियों पे जो भागते हैं वो हमारा काम नहीं है, उससे रुकने की ज़रूरत है। और नया साल मनाने का हमारे पास जायज़ नहीं है, इसलिए तमाम जो है बैनर्स लगा के जो रैली निकालने का बताया जा रहा है उससे गुरेज किया, उसके ऊपर अमल किया जाए और हेलमेट और मास्क और दूरी मेंटेन, हेलमेट मास्क दूरी मेंटेन ज़रूरी है।
अब भी अखबारों में न्यूज़ में आ रहा क्यों ओमिक्रॉन का मामला ये वो सब हो रहे हैं, उसकी एहतियात ज़रूरी है, वो तो है लेकिन खुसूसियत से आज नया साल की जो हुमाहुमी है, जो गड़बड़ है, उससे गुरेज और परहेज करना मुसलमान नौजवानों को सब लोगों से गुजारिश है कि उससे गुरेज परहेज करें। तेलंगाना जन समिति कायदीन के नए पुलिस कमिश्नर को तहनीत। नए पुलिस कमिश्नर मिस्टर के नागराजू से जिले में नज्म व कानूनी की बरकरारी और फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने की अपील एम ए अजीम कुरैशी प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल निजामाबाद अर्बन तेलंगाना जन समिति ने कल नए कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू से इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर इनके हमरा वेंकट इंचार्ज निजामाबाद तेलंगाना जन समिति सैयद जफर एडवोकेट व रियासती कायद TJS हरकियाती नौजवान कायद मोहसिन बलाला मजहर मोहम्मद सलीम जावेद के अलावा लतीफ मास्टर भी मौजूद थे। एम ए अजीम कुरैशी ने नए कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू से इस उम्मीद का इजहार किया कि वो जिले में नज्म कानून की बरकरारी और फिरका वाराना हम आहंगी के फरोग में नुमाया रोल अदा करेंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ MPP शिवालिंगू श्रीनिवास की जानिब से तैयार करदा साल नौ कैलेंडर की हैदराबाद के सरकारी रिहाइशगाह में इजराई अमल में लाई। रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ MPP शिवालिंगू श्रीनिवास की जानिब से तैयार करदा 2022 साल नौ का कैलेंडर को हैदराबाद में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह में इजराई अमल में लाते हुए कहा कि नया साल रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम के लिए खैर व बरकत की वो तमाम बहारें लेकर आने के साथ साथ नया साल तमाम अवाम के लिए खुशहाली का साल साबित होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन मोहम्मद मोइस के जेर निगरानी नवीपेट में क़याम अमल में लाए गए कोविड वैक्सीन के मुतालिक शोर बेदारी पर मबनी वैन का तहसीलदार लता ईसाई याकूब व MPDO साजिद अली के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन मोहम्मद मोइस ने तहसीलदार लता ईसाई याकूब वो MPDO साजिद अली के हमरा कोविड वैक्सीन के मुताबिक शोर बेदारी अमल में लाने के लिए क़याम अमल में लाए गए गाड़ी का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि जिले सदर अंजनलू के अहकामात के मुताबिक मंडल सतह पर कोरोना वैक्सीन के मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाने के मकसद के तहत गाड़ी का क़याम अमल में लाने की बात बताते हुए कहा कि अवाम टीके से मुतालिक डर खौफ में मुब्तला ना हो। टीका लगवाने से सेहत पर किसी भी किस्म के मनफी असरात नहीं होंगे। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन वेरिएंट से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फर्द मास्क का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासला बरकरार रखने के साथ हर एक फर्द सैनिटाइजर का यकीनी तौर पर इस्तेमाल करके खुद को और अपने अरकान खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस मेम्बरान जादित्या एम सायना, सीनियर असिस्टेंट देवी सिंह, जूनियर असिस्टेंट श्रीनिवास, APO भूमेश्वर गौड़, राजेश्वर, कायदीन विजय व दीगर ने शिरकत की। వృద్ధులకు ఇంకెవరికైనా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్స్ ఉంటే వాళ్ళకి అక్కడే వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కావున ఇటు అవకాశాన్ని నవిపేట మండల ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకుంటారని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు। आला ओहदेदारों के अहकामात के मुताबिक जिम्मेदार ओहदेदारों ने मुकामी अवामी नुमाइंदों के जेर निगरानी में काकतिया केनाल के तहत श्री राम सागर प्रोजेक्ट से काश्त के लिए ज़खायरात की इजराई अमल में लाई। आला ओहदेदारान के अहकामात के मुताबिक जिम्मेदार ओहदेदारों ने मुकामी अवामी नुमाइंदों के जेर निगरानी में काकतिया केनाल के जरिए श्री राम सागर प्रोजेक्ट से काश्तकारी के लिए आबी ज़खायर की इजराई अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों को फसलों की काश्त करने के लिए ज़खायरात की इजराई अमल में लाने के अलावा कई बेशुमार स्कीमात के तहत किसानों को फायदा पहुँचाने का इजहार किया। हरमीन शरीफैन में समाजी फासले पर आज से अमल दरामद।
हरमीन शरीफैन इंतजामिया ने कहा है कि नमाजी और मोतमरीन में समाजी फासले पर अमल दरामद का आगाज कल जुमेरात से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले के निशान दोबारा लगाए जा रहे हैं। इंतजामिया ने कहा है कि मताफ में समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए पहले की तरह ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए पूरे मताफ में जमीन पर निशानात के स्टिकर चिपका करने का अमल शुरू हो चुका है। इंतजामिया ने कहा है कि इसी तरह मुसल्लों की दोबारा तकसीम हो रही है ताकि नमाजियों के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखा जाए। फासले पर अमल करने के लिए स्टिकर चिपका किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने कहा कि तमाम मोतमरीन को मास्क की पाबंदी करनी होगी। नेज मस्जिद हरम में मौजूदगी के दौरान समाजी फासले को यकीनी बनाना होगा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर महकमे बी वेलफेयर गंगुला कमलाकर के हमरा जिले कामारेड्डी बेरकुर मंडल का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर गंगुला कमलाकर के हमरा जिले कामारेड्डी बेरकुर मंडल का दौरा करते हुए टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने 22 लाख मालियती रकम से ग्राम पंचायत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इमारत से मुताल्लिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी भी मौजूद थे। इसी तरह से असम्बली स्पीकर ने 6 करोड़ की लागत से ज्योतिबा फुले रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए तालीम को आम करने के मकसद के तहत हल्के के अहाते में जूनियर कॉलेज, कस्तूरबा स्कूल, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज का क़ियाम अमल में लाने से कई तलबा तालीम के जेवर से आरास्ता होकर आला ओहदे पर फायज होने के साथ साथ बैरूनी ममालिक का रुख करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासत गोदाम के चेयरमैन वी साई चंदर, जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल, डीसीसीबी चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। స్కూల్ 20 సంవత్సరాలు కట్టే స్కూల్ కొన్ని పడిపోతున్నాయి, పెచ్చులు పడుతూ ఉన్నాయి, కొన్ని సరిపోతలేవు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన నిధితో 210 స్కూల్ బిల్డింగ్ శాంక్షన్ చేసి మన కాన్ఫరెన్స్ లో 10 లక్షల కాడికి అంటే 21 కోట్ల రూపాయలు స్కూల్ బిల్డింగ్లకు ఇచ్చిన. మన బీర్కూర్లోనే ఎల్పీహెచ్ఎస్ 6 స్కూల్ బిల్డింగ్లు ఇచ్చిన, ప్రైమరీ స్కూల్ కు 3 బిల్డింగ్లు ఇచ్చిన, ఉర్దూ మీడియం ఎల్పీహెచ్ఎస్ కు 3 బిల్డింగ్లు ఇచ్చిన. ఇట్లా అనేక గ్రామాలలో ఎక్కడెక్కడైతే స్కూల్ బిల్డింగ్, దామరంచ ఉంది రోడెంబడి, అక్కడ 6 బిల్డింగ్లు ఇచ్చిన, బొమ్మందపల్లి ఇచ్చిన, తిమ్మపూర్ ఇచ్చిన 6 బిల్డింగ్. అంటే ఎక్కడ కూడా బిల్డింగ్ల కొరత లేకుండా స్కూల్ భవనాలు పాతగా అయిపోయి శిథిలావస్థకు వస్తే పడిపోయే ప్రమాదం ఉంటే బిడ్డల నెత్తి మీద లప్పబడ్డదనుకో మీదకెళ్ళి ప్రమాదం అవుతుంది. తెలవకుండా చదువుకుంటూ కూర్చుంటారు, దబ్బన వర్షాకాలం పడ్డదనుకో నెత్తి మీద మాడ మీద ప్రమాదం అవుతుంది. కాబట్టి స్కూల్ బిల్డింగ్లను తీసేసి ఆ రేకులే తీసేసి మొత్తం కొత్త బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి 210 బిల్డింగ్ శాంక్షన్ ఇచ్చాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఫండ్స్ నుంచి. అది కూడా వెంటనే టెండర్ అయిపోయినాయి. పొద్దున్న లేస్తే మీ తల్లిదండ్రులకు పదాబంధం చేయండి, తర్వాత కేసీఆర్ గారికి కూడా నమస్కరించండి. నిజంగానే నీ తల్లిదండ్రులే ఆలోచన వచ్చి నా బిడ్డను చదివించాలి, గురుకులం పంపించాలి ఆలోచన రాకపోతే నువ్వు ఈ రోజు పోచాల్సిన ముందు కూర్చొని చదువుకునే పరిస్థితి లేదు. ఈ రోజు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా మనం కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. అద్భుతంగా 6 కోట్ల రూపాయలతోటి 5 ఎకరాలలో ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేసినందుకు మా గొప్ప మనుషులు శ్రీనివాస్ రెడ్డికి నేను బీసీల పక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. నేను అందరూ కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నాను. ఒక్కొక్కరి మీద సుమారు 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని కార్పొరేటర్ ధీటుగా ఈ రోజు చదువు చెప్పిస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయానికి అనుగుణంగా నడుచుకొని మంచి చదువుకోవాలని చెప్పుకుంటున్నాను. रेंजल मंडल के मुकाम पर बोरगम ग्राम पंचायत के हाथे में रेड क्रॉस सोसाइटी के जेर निगरानी में मंडल सदर मुबीन खान व डिवीजन मेंबर अशफाक व नायब सदर गंगा किशन के हाथों म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स में ब्लैंकेट की फराहमी अमल में लाई गई। रेंजल मंडल के मुकाम पर बोरगम ग्राम पंचायत के हाथों में रेड क्रॉस सोसाइटी के जेर निगरानी में मंडल सदर मुबीन खान, डिवीजन मेंबर अशफाक व नायब सदर गंगा किशन के हाथों म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स को ब्लैंकेट की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले में इस मौसम में दर्ज हरारत में गैर मुतवक्के कमी की वजह से सर्दी में बेतहाशा इजाफा होने की बिना पर सर्दी से महफूज रहने के लिए म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स को ब्लैंकेट की फराहमी अमल में लाए जाने का इजहार किया।
नसरुल्लाबाद मंडल मैलाराम देहात के हाथे में 9.33 करोड़ रुपए की मुसारफ से 13.400 मीट्रिक टन गोदाम के इफ्तिताह पर मबनी प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर बीसी महकमे वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने की शिरकत। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर बीसी महकमे वेलफेयर गंगुला कमलाकर के हमरा नसरुल्लाबाद मंडल मैलाराम देहात के हाथे में 9.33 करोड़ रुपए की मुसारफ से तामीर करदा 13.400 मीट्रिक टन गोदाम का इफ्तिताह पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी के रियासती कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी, मुत्तहिदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, हल्के से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में जिले निजामाबाद की शाख की जानिब से मुरतब करदा 2022 पर मबनी डायरी व कैलेंडर की जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की रस्म इजराई। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तेलंगाना ऑल पेंशन एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में जिले निजामाबाद की शाख की जानिब से मुरतब करदा 2022 पर मबनी डायरी व कैलेंडर का रस्म इजराई अमल में लाते हुए कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन हासिल करदा तजुर्बे के तहत अवामी बहबूद पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत करके जिले के अवाम के खिदमत फराहम करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में जिले सदर दत्तात्रेय राव, जनरल सेक्रेटरी के राम मोहन राव, नायब सदर एम नरसिम्हा स्वामी, जिले कायद हमीदुद्दीन, हनुमान, सुदर्शन राजू, राधा कृष्ण, राजेश्वर, एल नारायण व दीगर ने शिरकत की। నూతన సంవత్సరంలో అంటే 2020 కాకుండా ఇంకా మంచిగా అంటే కరోనా నుంచి విముక్తి కలిగి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా 2020 కంటే ముందు ఏ విధంగా అయితే మనం మన యొక్క డైలీ కార్యక్రమాలు డైలీ వర్క్స్ ఏ విధంగా చేసుకునే వాళ్ళము అలాంటి సందర్భం రావాలని ఫస్ట్ ముందు కోరుకుందాం। అదేవిధంగా ఈ యొక్క 2022 సంవత్సరం తప్పకుండా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను। मोरताड़ मंडल पालियम देहात से ताल्लुक रखने वाले सरपंच एनुगु बदम संतोष रेड्डी व नायब सरपंच पी रवि ने मजलिस बल्दिये मेम्बरान के जेरे निगरानी में हैदराबाद रवाना होकर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। मोरताड़ मंडल पालियम देहात से ताल्लुक रखने वाले मुकामी सरपंच एनुगु बदम संतोष रेड्डी, नायब सरपंच पी रवि, वाइस MPP श्रीनिवास, दही कमेटी के मेम्बरान ने मजलिस बल्दिये मेम्बरान के जेरे निगरानी में दीगर गाड़ियों के जरिए हैदराबाद रवाना होकर रियासती वजीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की व मौजे से मुतालिक मसाइल से वाकिफ करवाने पर रियासती वजीर ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर पालियम गाँव की बोसीदा इमारत की तामीर के लिए 10 लाख रुपए फंड की मंजूरी अमल में लाने पर दही कमेटी मेम्बरान व अवामी नुमाइंदों ने इजहार तशक्कुर किया। साल नौ की तकारीब के मौके पर आज बेकरी व चिकन सेंटर पर अवाम का हुजूम नजर आया। शहर में साल नौ के मौके पर दीगर बेकरी व चिकन सेंटर पर अवाम का हुजूम नजर आया। इसी तरह से बेकरी इंतजामिया की जानिब से कई किस्म के केक तैयार करते हुए अवामी तवज्जो के मरकज बनाते हुए शानदार इस्तकबाल करने का मंजर नजर आ रहा है, जिससे मुकामी अवाम साल नौ की आमद के मौके पर एक दूसरे पर सबकत करते हुए बेकरी से केक व चिकन सेंटर से चिकन खरीदने में मसरूफ नजर आने पर माहौल खुशगवार नजर आया। डिचपली मंडल बर्दीपुर के मुस्तखर पर पेश आए कत्ल की वारदात का महकमे पुलिस ने अंदरून 24 घंटे हल करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि डिचपली मंडल बर्दीपुर मुस्तखर पर रात के औकात कार में पेश आए कत्ल की वारदात को अंदरून 24 घंटे में हल करने का इजहार करते हुए बताया कि मकतूल शेख माजिद का कातिल शेख जुबैर से जाती तनाज़े के बायस कातिल शेख जुबैर ने चचाजाद भाई शेख अतीक की मदद से शेख माजिद को बर्दीपुर गांव से ले जाकर शराब पिलाने के बाद बर्दीपुर देहात को जाने वाली BT रोड पर चाकू के जरिए हमला करके कत्ल करने के फौरी बाद जराई केनाल में शेख माजिद की नाश को फेंकने वाले कातिल शेख जुबैर शेख अतीक को हिरासत में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने किया इंकशाफ। ఆమె వైఫ్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఫెర్టిలిటీ సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు। ఇల్లీగల్ అని కాదు, అంటే ఏమంటారు, ఆమె యొక్క ప్రవర్తన మీద అనుమానం ఉన్నది అతనికి, నేరస్తునికి అంటే హస్బెండ్కి। సో వీరందరినీ నేను అభినందిస్తున్నా, ఎందుకంటే 24 అవర్స్లో మనం బాడీని రికవర్ చేయడం, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం, ఇంకో నేరస్తుని అరెస్ట్ చేయడం,
ఆటో సీజ్ చేయడం, ఆ కత్తి వాడు పొదలలో పడేస్తే ఆ కత్తిని సీజ్ చేయడం, ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఫోరెన్సిక్ టీమ్ని పిలిచి, డాగ్ స్క్వాడ్ని పిలిచి అన్నీ ఏవైతే ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయనో సీసీ ఫుటేజ్ కలెక్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ చేసి ఈరోజు రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుందండి. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ అయిందని ఒక నేరస్తుడు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో సరెండర్ కావడం జరిగింది. నేను ఒకరిని మర్డర్ చేశానని వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే మనకు అనుమానం ఉండే, ఎందుకంటే నిజమా కాదని మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకొని అధికారులు వెంటనే పోయి చూస్తే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను పిలిపించుకుంటే నిజమని తేలినాక వాళ్ళ తల్లిగారైన మృతుని తల్లి షేక్ మాజిద్ తల్లి సహేరా బేగం, షేక్ మాజిద్ ఎవరైతే డిసీజ్డ్ ఉన్నాడో అతని తల్లి సహేరా బేగం ఆమె యొక్క ఫిర్యాదు మేరకు 268 క్రైమ్ నెంబర్ 2021 అండ్ సెక్షన్ 302 కేసు నమోదు చేసుకొని తక్షణమే ఇటు విషయాన్ని इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जैसे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। 2021 के इख्तिताम व 2022 के आगाज के मौके पर साल गुज़िश्ता के अहम वाक़यात पर रोशन टीवी की ख़ुसूसी पेशकश। मुस्लिम नौजवान साल नौ के जश्न से परहेज करें और अच्छे कामों में अपना वक्त गुजारें। इस्लाह मुआशरा कमेटी जमतुलमा की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में खिताबात व बज़रिए पोस्टर की गई अवाम से अपील। किसानों की जरूरत के मुताबिक मस्जिद गोदाम को तामीर किया जाएगा। जिले के मैलाराम देहात में 9.33 करोड़ मालियत से तामीर करदा गोदाम का रियासती वजीर गुनगुला कमलाकर और रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। गुज़िश्ता रोज जिसपली मंडल बर्दीपुर में शहर के इलाके नगराम से ताल्लुक रखने वाले नौजवान के कत्ल के मामले को जिले पुलिस कमिश्नर कियाम नागराजू ने किया अंदरून 24 घंटे हल। नए साल की खुशियां अवाम महफूज अंदाज में अपने अफराद खानदान के साथ मनाए। नए साल के मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व दीगर ने दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।